इस वक्त आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जाना है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, साथ ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस वक्त तैयार हैं। एआईसीसी के मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर मैनिफेस्टो रिलीज का यह कार्यक्रम आज होगा। कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो आज जारी करेगी, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र खास तौर पर देखने को मिलेगा, जिसको हमने आपको डिटेल में ये जानकारी आप ही रखी है। हमारी पार्टी के लिए और पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार। केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय पत्र का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे। मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो न्याय पत्र को जारी करें। सर, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम इस बार न्याय पत्र रखा है, और इस न्याय पत्र को देखिए, सभी जो तमाम दिग्गज नेता इस वक्त हैं वो इस न्याय पत्र को जारी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार ये रणनीति बनाई है कि इस न्याय पत्र को मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो कार्यकर्ता वोट की अपील अपने अपने इलाकों में प्रत्याशियों के लिए करने के लिए जब जाएंगे, तो यह न्याय पत्र बकायदा मतदाताओं के पास में भेजा जाएगा। धन्यवाद। अब मैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। Honorable Congress President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019
has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government had delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section
which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, से बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST की जातीय जनगणना होती है। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ
भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स, मैं संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो बिना शर्त लिखा है मदद ना मिलना भैया। चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे, एंटीज पब्लिक आर डिसीव the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से
चलिए, तो ये आप इस वक्त सुन रहे थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आज अपने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को जारी कर दिया है और घोषणा पत्र को नाम दिया है न्याय पत्र। न्याय पत्र 2024, चूंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने इस न्याय पत्र में 5 न्याय और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण 25 गारंटियों का जिक्र किया है। और जो इसका मुखपत्र है, उस मुखपत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की फोटो नजर आ रही है। सोनिया गांधी की फोटो इस मुखपत्र पर नहीं है। यह बदलाव हुआ है पिछले मैनिफेस्टो के मुकाबले में। उसके बाद नीचे एक फोटो जिसमें राहुल की न्याय यात्रा का फोटो का जिक्र है। उसके अलावा युवाओं के लिए न्याय करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, नारी के लिए न्याय करने की बात करती है, किसानों, श्रमिकों, हिस्सेदारी, राज्य को न्याय, संवैधानिक न्याय, तमाम अलग अलग न्याय का जिक्र। लेकिन खास तौर पर जिन बातों पर फोकस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया वो ये कि महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना शर्त 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो में कर रही है। युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, पहली नौकरी पक्की, और इसके लिए अप्रेंटिसशिप की जो एक व्यवस्था करने जा रही है कि जो भी डिप्लोमा ले लेंगे 25 साल तक के युवा और कॉलेज में जिसकी पढ़ाई स्नातक तक की पूरी हो चुकी होगी, उन्हें 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने की बात यहां पर हर युवा के लिए कर रही है। यह बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी की बात भी है। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी जो है उसे 400 रुपए करने की बात भी यहां पर कर रही है। उसके अलावा पी चिदंबरम को भी आपने सुना, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को बनाते समय 3 पहलुओं पर ध्यान रखा है, वो है वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। इन 3 चीजों के आधार पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार जनरेट हो सकें, वेल्थ की जो जरिए हैं वो बढ़ सकें और सामाजिक वेलफेयर हो सके। इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो हमने तैयार किया। तो कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो अब सामने आ चुका है। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अमरजीत छाबड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा नितिन भंसाली जी आपसे ही, क्योंकि ये न्याय पत्र इस बार नाम दिया गया है और जैसा हमने कहा कि खड़गे और राहुल को इस बार फोकस करते हुए फोटो लगा कर गया है, सोनिया गांधी की फोटो नहीं है। ये जो घोषणा पत्र आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस घोषणा पत्र के जरिए जनता को कुछ लुभा पाएंगे आप? देखिए, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है। 25 गारंटियों के साथ ये न्याय पत्र की आज जो घोषणा की गई है हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, ये चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और जिस प्रकार हर वर्ग को आप देखिए, यहाँ पर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, व्यापारियों को हर तरीके से राहत किस तरह से मिल सके इसका प्रयास किया गया है और गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में जो जुमलेबाजी जो चलती रही थी, आम जनता इन जुमलेबाजियों को अच्छी तरीके से भुगत चुकी है। तो समय है बदलाव का, इतिहास बदलने जा रहे हैं हम, और निश्चित तौर पर ये हमारा न्याय पत्र आप देखिएगा, ये जनता के बीच जो है एक अमिट छाप छोड़ेगा और निश्चित तौर पर इस 10 साल के कुशासन का अंत होगा और एक बार फिर से सुशासन इस देश में कायम होगा। ठीक है, अमरजीत छाबड़ा साहब, आपकी प्रतिक्रिया। नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि यह न्याय पत्र जो जारी किया गया है ये गेम चेंजर साबित होने वाला होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन जनता के बीच में लाएगा। छाबड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है वो सिवाय एक दिखावा के कुछ नहीं है। कहते हैं कि जब कोई दिया बुझता है तो तेजी से फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादे किए, इनको मालूम है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे घोषणाओं को इसमें शामिल किया है कि जिसके पूरे होने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। ना नौबन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था तब 15,000 रुपए महिलाओं को सालाना देने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने एक सिरे से इनको नकार दिया था क्योंकि इन पर किसी का भी विश्वास नहीं है। और उन्होंने फिर से एक बार छलने का काम किया है, 1 लाख रुपए वर्ष भर में महिलाओं को देने का बात किया। मुझे लगता है कि इनके छलावे में अब जनता नहीं आने वाली है। 65 वर्ष इन्होंने इस प्रदेश की, इस देश की जनता को छलने का काम किया है। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जाने का ही काम किया है। आज देश
चौमुखी विकास कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज विश्व स्तर पर भारत की छवि एक राष्ट्र गुरु के बनकर उभरी है और विश्व के बड़े बड़े महानायक भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आवभगत में उनके लिए खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में आज जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश शीर्ष स्तर पर पहुंच रहा है, हमने गरीबों की चिंता की है। 10 वर्षों में रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगभग 8 करोड़ लोगों के लिए हमने छत देने का काम किया है। तो नितिन जी, महिलाओं के लिए छाबड़ा जी यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। वो ये 9 मन तेल और राधा, ये वाली लाइन जो है मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ताओं को बहुत अच्छे से सिखाई है। हर डिबेट में यही बोल रही है। ये बोलते हैं गरीबी दूर की। भैया 33 करोड़ गरीब थे, आज से 10 वर्षों पहले 2014 में 80 करोड़ हो गए। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो। इस देश में 2 ही योजना चली है आप लोगों की, युवाओं के लिए पकौड़ों की और आपके पूंजीपति मित्रों के लिए भगोड़ों की। यही 10 सालों में आप लोगों ने काम किया है। भाई कितना कर्जा था हमारे देश में? विदेशी कर्जा था 55 लाख करोड़, ये बढ़ के 210 लाख करोड़ हो गया। ये विकास है आपका? चीन भारत की सीमाओं में घुस रहा है। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी की छवि की बात कर रहे थे। ये कितने 1000 किलोमीटर चीन भारत में घुस चुका और ये झूठ बोलते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है। एक सर कटेगा तो अंदर घुस कर जाके 4 सर काट के लाएंगे। 56 इंच का सीना, ये सब बातें। चलिए मैनिफेस्टो, हजारों सैनिक शहीद हो गए। चलिए मैनिफेस्टो के पॉइंट्स बात करते हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपने अभी डिटेल में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और जिन 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस घोषणा पत्र को? ये घोषणा पत्र तो अच्छा है। घोषणा पत्र में जो जिन बातों को कांग्रेस उठाती रही है उन्हीं बातों को इसमें समावेश करके उस वर्ग को फायदा देने की बात कह रही है। परंतु ये जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचेगा और लोग कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि इसके लिए नेतृत्व चाहिए, संगठन चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ अगर नीचे तक नहीं पहुंचेगी, विश्वास नहीं होगा, लोगों को शामिल नहीं करेंगे, संगठन को शामिल नहीं करेंगे, तो अब ये मुश्किल जाएगा। देखिए, हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के समय भी जो महतारी वंजन योजना भाजपा लाई, कांग्रेस उससे ज़्यादा देना चाहती थी, घोषणा भी की थी, मगर जो जिस तरह से कनेक्टिविटी करके लोगों को जोड़ने का काम भाजपा ने की, वो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। तो एक बड़ा गेम चेंजर बना था वो महतारी वंदन। उसी तरह इसने भी बड़ा अच्छा है, ये 1-1 लाख रुपया कैसे देंगे ये अलग बात है, मगर सीधे घर के बुजुर्ग महिलाओं को पहुंचेगा। तो ये 1 लाख रुपये तो बहुत बड़ा रकम, मतलब महीने में 8000 रुपया तनख्वाह नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा लोग तक कमा नहीं पाते हैं, उनको आप ये पैसा देने जा रहे हैं। तो ये कैसे आप संभव होगा? उन महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? बड़ी बात वो कह रहे हैं कि चलिए अच्छे वादे किए हैं, बहुत सारी वादे ऐसे हैं जो जमीन पर, लेकिन ये जमीन पर उतरेंगे कैसे? कार्यकर्ता इन घोषणाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कैसे? वो तब जब एक एक करके भागम भाग जैसी स्थिति मची हुई है, कई जगहों पर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इन योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए लोग क्या मिलेंगे? क्या प्रत्याशी बिल्कुल मिल रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो भागम भाग मची है, इस विषय में भी मैं बोल दूं, फिल्टर हो रही है कांग्रेस। बारे ले भाजपा के लोगों को, जितने लोगों को लेना है लें। कल ही मैं कहीं पर बैठा था व्यास जी, वहां पर चर्चा चल रही थी, भाजपा के ही कुछ 2-3 नेता थे, बड़े दुखी थे कांग्रेस से या अन्य दलों से जो लोग इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो चिंता का विषय तो मेरे साथी प्रवक्ता जो डिबेट में बैठे हैं उनके लिए और भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो जमीनी स्तर पर लगातार काम करते आ रहे हैं और उनके हकों को मारने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों को लिया जा रहा है। हम हमारे विजन और मिशन को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। तो हमारा विजन क्लियर है और ये अभी ये कहेंगे कि इन्होंने ये कह दिया है, ये सरकार में नहीं आएंगे, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये घोषणा पत्र बना है। वरिष्ठ जनों से, अर्थशास्त्रियों से, बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद एक एक चीज को एनालिसिस करके ये घोषणा पत्र बना है और हम प्रतिबद्ध है इन गारंटियों को पूरा करने। छाबड़ा जी, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, उसमें खास तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 10 सालों के दौरान गरीबी को लेकर और खास तौर पर रोजगार को लेकर कुछ काम हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में युवाओं से रोजगार देने का वादा कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती बन पाएगा?
नहीं, देखिए कहीं भी चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप पृष्ठभूमि पर देखेंगे तो मात्र 370 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 543 लोकसभा की सीटें होती है। 26 दलों से गठबंधन की इन्होंने बात की थी, इनके ही गठबंधन के लोगों ने इनको नकार दिया है। दिल्ली में या पंजाब की बात करें तो केजरीवाल का जो आप पार्टी का संगठन है वहां इनको किसी भी तरह से आने की रोक इन्होंने लगा दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको हाथ रखने नहीं दिया है। तो ये किस तरह से किन वादों को पूरा करेंगे? ये मैनिफेस्टो को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार भी सपने में सोचने बन जाती है तो क्या उस मैनिफेस्टो को वो वहां से पूरा कर पाएंगे? ठीक है, इनके पास रामोतर तिवारी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा। ये हमारे सहयोगी दलों से चर्चा की गई है ना, एक मिनिमम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चर्चा करके मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये बात मैं बता दूं आपको, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद ये कहते हैं सहयोगी दल, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 26 दल है और आपका एनडीए तो 36 दल है, 10 दल आपके साथ जुड़े हैं आपके गठबंधन में। इसका मतलब आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी सरकार जा रही है। चलिए मैनिफेस्टो ठीक है, छाबड़ा जी मैनिफेस्टो पे समय की कभी मेरे पास। रामोतर तिवारी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। ये जो तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, तमाम चीजें जमीन पर परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, आप इन सब को लेकर फाइनल कमेंट क्या कहेंगे इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर? सर देख, किसी पार्टी का घोषणा पत्र उसका एक दस्तावेज है, उसकी गंभीरता है, उसका रोड मैप है। अब इस रोड मैप को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, जनसभाओं तक, प्रचार तंत्र तक, जनता तक, और कैसे विश्वास दिला पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी कांग्रेस कमजोर हुई अपेक्षाकृत भाजपा का। देखो, भाजपा का नेतृत्व मजबूत है, संगठन मजबूत है, प्रबंधन मजबूत है, कार्यकर्ताओं की टीम आ रही है और आप उखड़ रहे हैं। तब इसको कैसी लड़ाई लड़ेंगे, इसको कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। यहां तक तो ठीक है, इसको अपन दोनों। अब इसके बाद भाजपा का जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें क्या रहेगा? और भाजपा ने तो चुनाव में हिंदुत्व का जो मुद्दा है, मेन जो भाजपा का जनाधार बनने का, सरकार आने का एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, उस मुद्दे पे और क्या किस लाइन पे कांग्रेस जाएगी चुनाव के दौरान, ये भी देखने लायक रहेगा। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें जिस पर देखना होगा, चूंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है 5 न्याय 25 गारंटी, जिसका जिक्र हमने पहले भी IBC 24 के अलग अलग मंच कार्यक्रमों के जरिए बताया है कि क्या क्या न्याय और कमोबेश उन्हीं सब का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया है। लेकिन चुनौती ये कि जमीन तक क्या आम आदमी जिसे वोट देना है उस वोटर तक ये मैसेज पहुंचाने में वो कामयाब हो पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है तो उसमें किन बातों का ध्यान होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। तो इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।